tradition of every religion. Let's start pledge. My country, and all dear, are my brother and sister. I love my country, and I am proud of it. Rich and very heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and teach everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity, along life, my happiness. Jai Hind. Stand please. Attention. Stand please. Attention. Connecting ourselves with this world is a very important thing, and this can be done by news. So let's start news. A very good morning to our dear respected MD ma'am, MD sir, dear respected guests and principal ma'am. This is Ishika, candidate of class 7. Today I am here for delivering some news headlines. First of all, I am start some international news. Rishi Sunak survives party revolt on Rwanda Millions Plan Emergency Bill. Netherlands rises seriousness third level to subtenders. 11-year-old New York boy's body found in shelter home with shoelace around neck. Second, national news. Lokdal to contest every Lok Sabha seat in western Uttar Pradesh. Modi Shah's master plan to keep BJP in power. The last news is sports news. Surya Kumar proud of India brand in our cricket team. Surya Kumar sheltered Dhoni's record, helped India post third in T20. Thank you and have a great day. Stand please. Attention. Stand please. Attention. Now I would like to invite Ms. Ganga for third. Good morning all of you respected manager sir, manager ma'am, principal ma'am, teachers and all my dear friends. Myself Ganga from class 7. Today I am presenting here thought. The best page in the book of life is childhood. Thank you and have a nice day. Stand please. Attention. Stand please. Attention. There are millions of organisms in this earth, and the most intelligent organism among them is human. And I think every human is having different opinions on any topic. So now I would like to invite Dipti for her topic. Good morning all of you respected MD sir, ma'am, principal ma'am, teachers and all my dear friends. Myself Dipti, standard of class 8. Today I am given a topic. My topic is success. Success means with someone's efforts and hard work. If a person has a goal and does not try to fulfill his goal, then he can never achieve success. To be a successful person needs to hard work and put in a lot of efforts to achieve your goal. You need to taste after it and you must be dedicated. No one can achieve success in life without hard work. Thank you and have a nice day. Stand please. Attention. Stand please. Attention. Now I would like to invite Komal for her speech. Good morning to my dear respected MD sir, manager ma'am, principal ma'am and all my dear friends. Myself Komal, standard of class 7. Today I am here
to deliver our topic. My topic name is success. Success begins with someone's effort and hard work. If a person has a goal and does not try to fulfill his goal, then he can never achieve success. To be successful person need to lead hard work and put in lot of effort. To achieve your goal, you need to chase after it. And if you must be dedicated, no one can be achieve success in life without hard work. Thank you and have a nice day. Studies, attention. Studies, attention. Now I would like to request our chief guest to please come onto the stage and speak few words. इस स्कूल के प्रबंधक, टीचर्स और बच्चों का इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं जो आज ये कार्यक्रम है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, इसके बारे में हमारे शाखा की ओर से श्रीमती नीलम भाटिया, जो कि इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, इसके बारे में बताएंगी। फिर मैं उसके बाद में भारत विकास परिषद के बारे में कुछ आपसे बातें शेयर करूंगा। नीलम भाटिया। Good morning to all, student, teacher. मैं भारत विकास परिषद की सदस्य नीलम भाटिया आप सबसे अपनी बात व्यक्त करने आई हूँ गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के बारे में। बीडी जोशी मेमोरियल स्कूल की प्रधानाचार्य, स्टाफ और प्यारे बच्चों, भारत विकास परिषद लालकुआ की ओर से मैं आप सबके विद्यालय में भारत विकास परिषद की ओर से प्रमुख कार्यक्रम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के बारे में कुछ बात व्यक्त कर रही हूँ। गुरु और शिष्य के बारे में आप सबके सामने, गुरु और शिष्य का रिश्ता ज्ञानपूर्ण होता है। गुरु शिष्य को जीवन के सही मूल्य और जीवन की सच्चाई और ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम है और ऊंचाई को अपने जीवन को सही मूल्य, जीवन की सच्चाई और ऊंचाई तक ले जाने की सीढ़ी होती है। गुरु बिना शिष्य अधूरा है और शिष्य बिना गुरु भी अधूरा है। मैं आप सबसे गुरु वंदन और अभिनंदन के बारे में कुछ बात और एक कविता के थॉट पे बोलना चाहती हूँ। रोज सवेरे मिलते हैं इनसे, क्या हमको करना है ये बतलाते हैं। लेके तस्वीरें इंसानों की, सही गलत का भेद हमें बतलाते हैं। कभी डांट तो कभी प्यार से कितना कुछ हमको समझाते हैं। भविष्य देश का जिनमें उन सबका भविष्य बनाते हैं। है रंग कई इस जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान ये करवाते हैं। खो न जाए भीड़ से कहीं हमको ये ही मिलवाते हैं। हार से फिर लड़ना ही जीत है सच्ची, ऐसा एहसास हमको कराते हैं। कोशिश करते रहना हर पल जीवन का अर्थ हमें बतलाते हैं। देते हैं नेक मंजिल भी, हमें राह भी बतलाते हैं। देते हैं ज्ञान जीवन का, यही काम, यही सब इनका, ये शिक्षक कहलाते हैं। यही शिक्षक कहलाते हैं, यही शिक्षक कहलाते हैं। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू नीलम। आपने जो हमारा विशेष कार्यक्रम, जो कि भारत विकास परिषद की समस्त शाखाएं अपने अपने स्थानों पर स्कूलों में करवा रही हैं, इसके बारे में आपने बच्चों को बताया कि हमारा और टीचर्स का कैसे बीच में सामंजस्य होना चाहिए कि हम जिस स्थान को सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा माध्यम स्कूल में एक टीचर ही है जो कि हमें हमारी सफलता की ओर ले जाने में हमारा सहयोग करता है। मैं भारत विकास परिषद शाखा लालकुआ
और उसके बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर उनके सेवा भाव के सुझावों के रास्ते पर 5 सूत्री कार्यक्रम जो भारत विकास परिषद लेकर चलता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा मोटिव है 5 सूत्र। संपर्क, हम आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाएंगे तभी हम एक दूसरे को जान पाएंगे। जैसा कि हमने आपके स्कूल में आपके यहाँ के प्रबंधक वर्ग से, प्रिंसिपल मैन से संपर्क किया, हमें उनका सहयोग मिला। दूसरा पॉइंट है सहयोग। हमें उनका सहयोग मिला और आज हम तीसरा पॉइंट संस्कार, जो भारत विकास परिषद की ओर से हम आपको संस्कार दे पाएंगे। चौथा पॉइंट है सेवा, हम किस तरह से सेवा दे पाएंगे। और उसके बाद में सभी पॉइंटों को लेकर हम कैसे उस कार्यक्रम की ओर, उस कार्यक्रम को समर्पण, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। यही हमारे 5 पॉइंट हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। जब हम इन 5 पॉइंट पे, 5 सूत्रों पे कार्य करेंगे तो अवश्य ही हम जहां तक अपनी सफलता को ले जाने की सोच रख रहे हैं, हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हमें जरूर ही उस तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। आजकल मैं देखता हूं कि बच्चे जो है मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं। अच्छी बात है, मोबाइल में बहुत सी चीजें आती हैं, ज्ञानवर्धक आती हैं। हम मोबाइल को अपने ज्ञान के लिए, अपनी पढ़ाई में उसको सहयोग करवाने के लिए, जैसे हमारा टीचर सहयोग करती है, आजकल विज्ञान की ओर से एक मोबाइल है, माध्यम है जो हमें भी बहुत सहयोग करता है। तो हमें मोबाइल को वैसे ही यूज करना है कि हम उससे कुछ सीखें, उससे हम सही राह पाएं, जैसे हमारे टीचर्स हमें बताते हैं। क्योंकि आजकल बड़ी तरीके की प्रवृत्तियां हमारे आसपास में, समाज में नशे की ओर ले जाने के लिए बहुत लोग इस टाइप के काम करते हैं। हम अपने चारों ओर हर तरह का व्यक्तित्व पाते हैं। जिस व्यक्तित्व को हम आत्मसात करेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम गलत व्यक्ति के साथ अपने फ्रेंड सर्किल बढ़ाएंगे तो हमारा मनोभाव भी गलत ही बनेगा। और अगर हम किसी अच्छे व्यक्तित्व से अपना सहयोग, अपनी बात शेयर करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे। हम अच्छे बनेंगे तो अपने घर का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने स्कूल का नाम तभी रोशन करेंगे। आप देखते हैं अभी हमारे एक क्रिकेटर 60 लाख रुपए में उसको सालाना जो है उसको अभी एक खरीदा गया है कहूंगा मैं। क्रिकेटर लड़की एकता बिष्ट, जानते हैं? तो अगर हम अच्छी बातें यहां से सीखेंगे, अच्छा आत्मसात करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अपने घर माता पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्कूल में आकर अपने टीचर, अध्यापक, अध्यापिकाएं जो हमें शिक्षा ग्रहण करवा रही हैं, अगर हम उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे और घर जाकर
उसको अपने भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ शेयर करेंगे, हमें उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। जैसा कहा गया है, क्या माही कहे कबीर का दास को तीनों लोक में माही। गुरु, अगर गुरु की बात को हम सिर माथे पर रखकर हम अपने काम करेंगे तो तीनों लोक में जैसे हनुमान जी को सब जानते हैं ना, हमारे पूज्य देव हैं, वो भगवान राम को अपने गुरु से भी बढ़कर माता पिता सब कुछ मानते थे। तो आज तीनों लोकों में उनकी पूजा होती है। ऐसे ही अगर हम अपने गुरु का बात मानेंगे, उनके ज्ञानवर्धक बातों को आत्मसात करेंगे, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान का दीपक गुरु जलाते हैं, अंधियारा अज्ञान का मिटाते हैं। विद्या रूपी धन लेकर गुरु प्रगति मार्ग पर हमें आगे बढ़ाते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कुंभ मीन्स घड़ा। गुरु कुम्हार है और शिष्य जो है घड़ा है। घड़ी घड़ी काटे कोर, अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। हमें गुरु जिस तरह से मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको बनाते हैं, जो कुम्हार होता है उसको अंदर से हाथ लगाकर सहारा देकर उसको गोलाई में सफाई से जैसे बनाता है, वैसे ही हमारे शिक्षक हमारे लिए हैं। और बाहर से हमें डांटता भी है, मारता भी है, सही राह दिखाता है, तो बिल्कुल घड़ा जो है चिकना बन जाता है। ऐसे ही अगर हम अपने गुरु को, गुरु की बातों को, उनकी बातों का अनुसरण करेंगे, तब ही हम घड़े की तरह देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने गांव को एक अच्छा नाम आगे तक बढ़ा सकते हैं। शिक्षक के बिना हमारा जीवन अधूरा है, सभी लोग जानते हैं। मैं बच्चों से कहूंगा, जो हमारे टीचर हैं, हमें एक बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए तैयार करते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप किस तरह से अपने जीवन को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर आप सफलता की ओर ले जाएं। मैं, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल का टाइम है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः बीडी जोशी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक, टीचर्स और इन बच्चों का मैं बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो आज हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और जो ये हमारा भारत विकास परिषद का गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में हमें समय दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे भारत विकास परिषद के सचिव चंद्रेश भाटिया जी पहुंचे हैं, उनके साथ में उनकी सब पत्नी पहुंचे हैं। जुगल किशोर जी मेरे साथ हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ में शाखा की महिला संयोजिका श्रीमती रितु अरोड़ा जी यहाँ पहुंची है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक परिचय जो मैंने पहले दिया, इस कार्यक्रम की संयोजिका गुरु वंदन छात्र अभिनंदन की संयोजिका, इन्होंने इस कार्यक्रम को किस तरह से करना है उसके बारे में हमें भी गाइड किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस कार्यक्रम को अब आगे और दूसरी ओर ले जाते हुए मैं सर्वप्रथम
इस विद्यालय की प्रिंसिपल मैम हंसी बहुगुणा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाए और मैं नीलम जी से श्रीमती चंद्रेश भाटी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, क्योंकि हमें ये कार्यक्रम करने के लिए हमारा सहयोग किया। हमें एक मैं निवेदन श्रीमती चंद्रेश भाटी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, क्योंकि हमें ये कार्यक्रम करने के लिए हमारा सहयोग किया। हमें एक मैं निवेदन करूंगा कि सम्मान करेंगे। श्रीमती मोगना जी से निवेदन करूंगा कि आपने हमें जो सहयोग किया है, मैं उसका धन्यवाद। भारत विकास परिषद आपका से आभारी रहेगा। अब इस कार्यक्रम को, जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम है गुरुवर्धन छात्र अभिनंदन, इस विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक जो कि आपको हर तरह से गाइड कर कर, डांट कर, समझा कर, हर तरह से आपको शिक्षित करने में बहुत ही सहयोग करती हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती किरण जोशी जी से कि वो मंच पर आएंगे। मैं अपने भारत विकास परिषद के मेरे साथ आए साथियों से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्कूल के प्रबंधक भी हैं और हर तरह से भारत विकास परिषद को सहयोग करते हैं। मैंने देखा कि हम पहली बार भारत को जानो प्रतियोगिता लाए थे यहाँ पर। उस समय यहाँ से बच्चों ने जो उसमें पार्टिसिपेशन किया, उसके बाद में हमारा सेकंड राउंड भी खेला, बहुत अच्छा खेला और सफलता भी मिली आपको। मैं अब निवेदन करूंगा कि अब आपके स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं, हर तरह का स्टूडेंट होता है, आप कैसे अपने अध्यापक की बात को कैच करते हैं, कैसे समझते हैं, अपने आप को कैसे अपटूडेट रखते हैं, स्कूल में कैसे टाइम से आते हैं, अपनी ड्रेस को क्रीज खराब नहीं होनी चाहिए, शूज साफ होने चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, हर चीज का ध्यान रखते हुए अपनी बुक्स फ्रेश होनी चाहिए। आज हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी बुक घर में नहीं भूलनी चाहिए और हमें क्या क्या होमवर्क दिया गया था, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, घर में भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अगले दिन मैम को आके चेक कराना है। ऐसे ही इन कार्यक्रमों को जो निपुणता से करता है, उस बच्चे का नाम है मोहित जोशी। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाए और उनको भी भारत विकास परिषद आज सम्मानित करने के प्रयास कर रहा है। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उनको भी एक मोमेंट को देकर सम्मानित करें।
कि सर्वश्रेष्ठ जरूर है, लेकिन आपका साथी है। आप भी ऐसे बन सकते हैं। आप अपने आप को उसी तरह से उनकी बातों का अनुसरण करके, क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल होती है ना, हम उनकी बातों को शेयर करते हैं और आत्मसात करते हैं। अगर हम आत्मसात करेंगे तो हम भी सब सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। मैं श्रीमती हिरण जोशी से निवेदन करूंगा कि आप ही 2 शब्द इस मौके पर कहेंगे। सुप्रभात। सादर अभिनंदन सभी यहाँ पे मौजूद जो हमारे बीच में हैं। भारत विकास परिषद की तरफ से हमारे मध्य डॉक्टर सेठिया जी हैं, मिसेस भाटिया हैं, मिसेस अरोरा है, मिस्टर भाटिया है एंड भूषण किशोर जी हैं। मैं सभी का बीडी जोशी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हम सभी के लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे मध्य भारत विकास परिषद की तरफ से जो टीम मौजूद है, और भारत विकास परिषद जो है गाइडलाइन में चल रही है विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी का नाम हम सभी जानते हैं। विवेकानंद जी के जो उनका जो आप बोल सकते हैं उनके जो गाइडलाइन है, उनके जो पथ उन्होंने जो हमको दिखाया है, उसका अनुसरण हर भारतीय को मुझे लगता है आज की डेट में करना ही चाहिए। विवेकानंद जी को जाना जाता है किस बात के लिए जाना जाता है? सबसे ज्यादा जाना जाता है उनकी शिकागो की स्पीच के लिए, जहां उनको टॉपिक दिया था 0 पे बोलना था उन्होंने। और 0 पे बोलने के उस टाइम पे जो इंडिया है, इंडिया पे ऐसा कंसिडर किया जाता था कि जो भारत के लोग हैं बहुत उनको बहुत बैकवर्ड माना जाता है।